Good morning, students. In previous videos, we have studied about the relation and types of relations. Okay. Now we will study about the functions, definition of function, and domain of a function. तो वो पढ़ने से पहले हम रिलेशन को थोड़ा वापस से रिवाइज करते हैं. A relation assigns the axis with y's. ठीक है. Let us consider there are two sets. एक तो ये सेट है और एक ये सेट है. इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें 2 4 6 8 और 10 है. इस सेट को फर्स्ट वाले सेट को हम बोलेंगे इसका डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन, एंड सेकंड सेट इज़ कॉल्ड एज कोडोमेन. अब कोडोमेन में जितने भी वाइज हमारे पास यूज़ में आ रहे हैं उन सब का जो सेट अगर हम बनाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में उस सेट को हम बोलेंगे रेंज. ठीक है. So the domain of this relation is this set, and the codomain of this relation is this set, and range of the set is those elements which are using 2 4 6 8 and 10. These are in the range. Okay. Now next, a relation is the set of ordered pairs. रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज इन द रिलेशन. डोमेन होगा -1 0 2 4 9. इफ वी डिफाइन अ रिलेशन लाइक दिस इज a relation, then domain of this relation is -1 0 2 4 9, and these are the y values returned in a set from smallest to largest. Okay. Now these are the values -6 -2 3 5 9. The range is the set of all y values in the relation. Okay. और x की वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको तो हम डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यूज़ का जो सेट होगा उसे रेंज कहते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग ऑन फंक्शंस. व्हाट आर फंक्शंस? ठीक है. तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन तो ये है. ए फंक्शन इज a relation between a set of inputs and a set of permissible outputs with the property that each input is related to exactly one output. मतलब function is a relation. It means function is a type of relation. If a relation satisfies some conditions, some criterias, then that relation will be called as a function. Okay. And these conditions are a set of inputs and a set of permissible outputs with the property that each input is related to exactly one output. मतलब each input exactly one output से related होना चाहिए. ठीक है. Now set of input is known as domain, while the set of permissible outputs is called the codomain, and the set of all output values of a function is called range. Okay. नीचे एक रिलेशन डिफाइंड है सेट एक्स और सेट वाई में. अब देखो सेट एक्स में देर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट एक्स एंड देर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट वाई. नाउ हियर वी कैन सी दैट here these are inputs and these are permissible outputs. Now we can see that for every input there is exactly one output. Okay. यहाँ पर कोई भी इनपुट, यहाँ कोई वैकेंट नहीं है. ईच इनपुट के लिए आउटपुट है और वो भी कितना है? एग्जैक्टली वन आउटपुट है. ओके. देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन defined from set x to y. Okay. Now domain of this function is 2 8 7 5. This first set will be domain of this function, and range is 3 6 12. यहाँ टू बाय मिस्टेक आ गया है. 3 6 12 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एंड कोडोमेन इज कंप्लीट सेट y. Codomain is 3 6 9 12 and 15. Okay. Now this is the function. Now we are going on the exactly definition of function. A function from a function f from set A to set B is a rule of correspondence that assigns to each element x in the set A exactly one element y in the set B. Okay. मतलब
एक रूल होता है करस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई। मतलब सेट ए ये है और सेट बी ये है, एक्स की वैल्यूज़ इसमें होंगी, वाई की वैल्यूज़ इसमें होंगी। तो ये कह रहा है कि भाई एलिमेंट ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई। इसका ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन वाई को क्या करेगा, वो असाइन करेगा। ठीक है, तो देखो इस सेट में हम देखते हैं ऑल एक्सेस आर असाइंड। सभी एक्स के लिए एक वाई क्या है, असाइंड है, कम से कम। इसमें देखो नो एक्स हैज़ मोर देन वन वाई असाइंड। ठीक है, मतलब वन के लिए ओनली एक ही वाई असाइंड है और वो है 4। 4 के अलावा और कोई वाई इसमें असाइंड नहीं है। सिमिलरली 2 के लिए ओनली 2, 3 के लिए है ओनली 10, 4 के लिए 8 एंड 5 के लिए 6। ओके, so there are two conditions to be a relation function. Okay, these two conditions are must use all the x's, मतलब सारे x's का यूज़ में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, द x वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू वन y, मतलब x की वैल्यू केवल वन y के लिए ही असाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन, इट मीट्स आवर बोथ ऑफ द कंडीशंस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर रिलेशन एंड डिसाइड इफ इट इज़ अ फंक्शन। ये एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है और इसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑल एक्सेस आर असाइंड। सारे एक्सेस इसमें असाइंड है कि नहीं है, सारे एक्सेस इसमें असाइंड है, कोई भी वैकेंट नहीं है। नो एक्स हैज़ मोर देन वन वाई असाइंड, तो देखो वन के लिए असाइंड है 4, 4 के अलावा और कोई वाई इसमें वन के लिए असाइंड नहीं है। ठीक है, 2 के लिए भी ओनली 4 ही है, 4 के अलावा और कोई असाइन नहीं है। 3 के लिए भी 4 है, 4 के लिए भी 4 है एंड 5 के लिए भी 4 है। तो ये हमारी जो दोनों कंडीशंस थी उन दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। मस्ट यूज ऑल द एक्सेस, द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू वन वाई। ओके, these two the both of the conditions are satisfied, therefore this is a function, it meets our both of the condition. okay, तो इस फंक्शन, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ फंक्शन। नाउ we are taking an example, a good example that you can relate to is students in our maths class this semester are set A। हमारे मतलब सेट ए में स्टूडेंट्स होंगे, हमारी क्लास मैथ्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, द ग्रेड दे अर्न आउट ऑफ द क्लास इज सेट बी। ईच स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड ए ग्रेड एंड कैन ओनली बी असाइंड वन ग्रेड, but more than one student can get the same grade. We hope so. We want lots of A's. The example shown on the previous screen had each student getting the same grade. That's okay. ठीक है, मतलब हम इसमें एक तो सेट ले रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स। ओके, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स एंड दिस इज द सेट ऑफ ग्रेड्स। ये ग्रेड्स का सेट है। पिछले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल पे सारे स्टूडेंट्स को क्या मिल रही है, सेम ग्रेड मिल रही है, फिर भी ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो देखो 1 को मिल रहा है 2 ग्रेड और 2 को मिल रहा है 4 भी और 10 भी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट को दो दो ग्रेड्स मिले, डबल ग्रेड्स मिले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, क्यों नहीं है? बिकॉज दिस डज नॉट सेटिस्फाइज सेकेंड कंडीशन, द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू वन वाई। यहाँ ये जो एक्स वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू 2 है, ये 1 y के लिए असाइन नहीं है। यहाँ से ये असाइंड हो गई 4 के लिए भी और 10 के लिए भी। सो 2 वाज असाइंड फॉर बोथ 4 and 10, therefore this is not a function. Okay, next example, comparing to our example, a student in maths must receive a grade. Okay, यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, मतलब 1 के लिए 6 ग्रेड हो गया, 2 के लिए 2 हो गया, बट 3 जो स्टूडेंट है
इसके लिए कोई ग्रेड यहाँ पर असाइंड नहीं है। तो ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, मस्ट यूज़ ऑल द एक्सेस, इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। और सेकंड कंडीशन को तो फिर ये सेटिस्फाई करे या ना करे, जब फर्स्ट ही सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, इट डज नॉट असाइंस ईच एक्स विथ ए वाई। ओके, यहाँ पर ये एक एलिमेंट जो है वो 3 वो कैसा रह गया, वैकेंट रह गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज फाइन, each student gets only one grade, more than one can get an A and I don't have to give any D's. Okay, so all y's don't need to be used, मतलब सारे y's इसमें यूज़ में आए ज़रूरी नहीं है, मतलब जितने भी ग्रेड्स हमारे पास होती हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मिले, दिस दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब जैसे इसमें देखो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मस्ट यूज़ ऑल द एक्सेस, सारे एक्सेस इसमें यूज़ में आ रहे हैं। द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू 1 के लिए ये असाइंड है, लेकिन y के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट 8 है जो असाइंड नहीं है किसी भी x के लिए। ओके, देन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए केवल किसके लिए असाइंड होना ज़रूरी था, x के लिए। ठीक है, y के लिए क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो this is a function because this is satisfying both of the condition. Okay, next, notation of a function. Notation of a function is given by f फिर ब्रैकेट x। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई f को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस मीन्स द राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन कॉल्ड f, मतलब इसका f ब्रैकेट में फिर x लिखने का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, ये x का फंक्शन है। दिस मीन्स द राइट हैंड साइड हैज़ द वेरिएबल x इन इट। ओके, इस f का तो मतलब होता है कि राइट हैंड साइड एक फंक्शन है जिसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में जो x या y जो भी लिखा जाएगा, जो भी वेरिएबल इसमें लिखा जाएगा, इसका मतलब होता है दिस मीन्स द राइट हैंड साइड हैज़ द वेरिएबल x इन इट। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में उसकी डेफिनेशन लिख दी जाएगी जो भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द लेफ्ट साइड डज नॉट मीन f टाइम्स x लाइक ब्रैकेट्स यूजुअली टू, मतलब ब्रैकेट जैसे यूज़ में लेते हैं हम, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद वो f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली टेल्स अस व्हाट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो केवल इतना बताता है कि राइट हैंड साइड में क्या है। नेक्स्ट, the left hand side of this equation is the function notation. It tells us two things. We call the function f and the variable in the function is x. मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दो चीज़ें बताती है, एक तो फंक्शन f और एक कि उस फंक्शन f में जो वेरिएबल होगा वो होगा x। दिस इज द नोटेशन ऑफ ए फंक्शन। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, अब x की जगह अगर हम और कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में x होगा वहाँ वहाँ हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, so we have a function called f that has the variable x in it. Using function notation we could then ask the following. Okay, find f2, मतलब f2 ये फंक्शन की डेफिनेशन दे दिया और f2 वो फाइंड करवा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा दिस मीन्स टू फाइंड द फंक्शन f and instead of having an x in it put a 2 in it. So let's take the function above and make brackets everywhere the x was and in its place put in a 2, मतलब x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2 सब्स्टिट्यूट करना है। डोंट फॉरगेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, पावर्स, देन मल्टीप्लिकेशन, फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो हमारे पास सॉल्व करने का जो रूल होता है उसी रूल से हमें इन्हें सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, the last thing we need to learn about functions for this section is something about their domain. Recall, domain means set A, which is the set of values you plug in for x. Okay, डोमेन क्या होता है, सेट ए होता है जिसमें से हम किसकी वैल्यूज लेते हैं, एक्स की वैल्यूज लेते हैं। फॉर द फंक्शन वी विल बी डीलिंग विद देयर आर 2 इल्लीगल्स, मतलब वहाँ 2 कंडीशंस होती हैं। वो सबसे पहला है यू कांट डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर बॉटम और ए फ्रैक्शन कांट बी 0। ओके,
मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, यू कांट टेक द स्क्वायर रूट और इवन रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। ये भी क्लास 11 में हमने पढ़ा था, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या बनता है? इमेजिनरी नंबर बनता है। बट वी आर स्टडिंग हियर फंक्शन, रियल फंक्शंस। ओके, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होंगे? रियल फंक्शंस होंगे, मतलब सब कुछ रियल नंबर पर काम होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर पर नहीं होगा। सो वी कांट टेक square root of a negative number. When you are asked to find the domain of a function, you can use any value of x as long as the value won't create an illegal situation. मतलब जब हमें डोमेन फाइंड करना हो तो ये दोनों कंडीशंस बस उसमें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस। ओके, मतलब जीरो से डिवाइड नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर का हम नहीं ले सकते। ये दोनों कंडीशंस को अगर हम उसमें से रिमूव कर दें तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी डोमेन। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन इसमें डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1। देयर इज since no matter what value you choose for x, you won't be dividing by 0 or square rooting a negative number. You can use anything you want, so we say the answer is all real numbers x। मतलब इसमें हम x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से ना तो ये जीरो से डिवाइड होगा, ना ही स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, देयरफॉर all the real numbers x is domain of this function। ठीक है, another example, gx is equal to x plus 3 upon x minus 2। ठीक है, there is nothing wrong with the top is equal to 0, just means the fraction is equal to 0। अगर यहाँ पर इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? फिर हमारे पास gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट इलीगल इफ़ दिस इज़ ज़ीरो, मतलब अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो इलीगल है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? इफ़ यू चूज x इज इक्वल टू 2, द डिनोमिनेटर विल बी ज़ीरो, विच इज़ इलीगल बिकॉज यू कांट डिवाइड बाय ज़ीरो। द आंसर देन इज ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x इज़ नॉट इज इक्वल टू 2। ओके, मतलब इसका डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा, बट x की वैल्यू 2 के इक्वल हम नहीं ले सकते। ठीक है, दैट इज द डोमेन। नाउ नेक्स्ट, let's find the domain of another one। hx is equal to root of x minus 4 can't be negative, so must be positive or equal to 0। x minus 4 जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, so x minus 4 is greater than is equal to कितना आएगा? 0। if we solve this then we will get x is greater than is equal to 4। we have to be careful that x as we use so that the second illegal of square rooting and negative doesn't happen। This means the stuff under the square root must be greater than or equal to 0, match we of saying not negative। So the answer is all real numbers x such that x is not is equal to 4। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, नॉट इज इक्वल टू नहीं आएगा, ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ओके, here will be x is greater than is equal to 4, that will be the domain of this function। now summary of how to find the domain of a function। Look for any fractions or square roots that could cause one of the two illegals to happen। If there are not any, then the domain is all real numbers x। सबसे पहले हम वो दोनों illegals के लिए चेक करेंगे कि कौन मतलब कौन सा इसमें हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है then all real numbers x will be domain। If there are fractions, figure out what values would make the bottom equal to 0 and those are the values you can't use। The answer would be all real numbers x such that x is not is equal to those values। Okay, if there is a square root, the stuff under the square root cannot be negative, so set the stuff greater than is equal to 0 and solve it। Then answer would be all real numbers x such that x is greater than is equal to या less than is equal to जो भी whatever you got when you solved। Okay, of course your variable doesn't have to be x,
कैन बी वॉट एवर इज़ इन द प्रॉब्लम। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वेरिएबल एक्स ही आए, हमारे पास तो एफ एक्स की जगह एफ टी भी हो सकता है, देन द वेरिएबल विल बी टी। ओके, थैंक यू।